हरिहं तयारिहं 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 अरिहंत 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 आदिनाथ 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 गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 ચાલો આજે આપણે પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે 25 ગાથાની જે રચના દ્વારા આપણે રોજ સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ એની 6 ગાથાઓ બાકી રહી છે એનો આજે સંક્ષેપમાં વિવેચન કરીએ એનાથી પહેલાં આખી રચના આપણે એકવારનો સ્વાધ્યાય કરી લઈએ છીએ વારાફરતી બુલંદ સ્વરે બધા ભાવપૂર્વક જીલા આવજો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ક્યારે આણા શ્રી જિનવરની શિર પર ધારીને પ્રભુ એવો મોહ મહામદ છાક મને ચકવી ગણો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો પ્રભુ એવો ભવા વિનંદિતાને પુદ્ગલ નંદિતા આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી પ્રભુ એવો આર્ક રૌદ્રનું યુગ્મ અનાદિ કાળનું ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી પ્રભુ એવો આશ્રવ પાંચ અનાદિ શત્રુ જીવના વૃષાવાદ ચોરીને મૈથુન પરિગ્રહ પ્રભુ એવો દાનશીલ તપ ભાવ જીનેશ્વર બાંકિયા પ્રત્યેક કરણી કરશું જીન વચનો ગ્રહી પ્રભુ એવો સમવસરણ જીનવરનું જોશું કઈ પડે ચરણ કરણ રાણી શ્રી જીનવરની શુણવા કારણે પ્રભુ એવો
વાસ કરે સો સંયમ ગુણ દરબારજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? કેવલ જ્ઞાની મન પર્યવ ઓહી મુનિ. ગૌતમ સ્વામી સુધર્માને જંબુ ક્ષમા. મુજને મળશે ત્યારે એવા સંતજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? શ્રીજનવરની પાસે સંયમ આદરી. ક્યારે કહીશો અભ્યંતર અણકારજો. મન વચ કાયા રત્ન ત્રયી રટતા હશે. બળવા થશે ત્યારે દોષ હટારજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? ગીતારત ગુરુવરનું શરણો યાદરી. સર્વકાલ સ્વાધ્યાય સખા થઈને વળી. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? બાહ્ય અભ્યંતર ગ્રંથિ મુજ દૂરે થશે. પ્રથમ સુધાનું કરશો ક્યારે માનજો. સર્વ સંસારી સંયોગો દૂરે કરી. ગિરિ ગુફામાં કબરેશો એક તાનજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? કાળ અનાદિ સંજ્ઞા ચોકી ચારની. અડધી પાસે કબવાતમથી સાવજો. નંદન મુનિવર જીવ જીનેશ્વર વીરના. જેવો તપસો તપ ગૌરઈએ નાવજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? રૂપ ગંધ રસ સ્પર્શ શબ્દના વૃંદનો. બાહ્ય અભ્યંતર ત્યાગ કરવા મુજ થાયજો. ગજ સુકુમાલ સુકોસલ મહેતા રજ મુનિ. જેવો થઈને જીતો ચાલક સાયજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? કાકંડે નગરીના ધન્ના મુનિવરો. ધન્નાશાલી મુનિવર વેદ કુમારજો. બાહુબલીને ઢંઢણ ખંડક ત્યાગિયા. જેવા વ્રતકાળી સુનિયતિ ચાલજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? વન વગડે વિતરાગ મુનિના વૃંદમાં. પ્રેત વનોમાં દર્શો ક્યારે ધ્યાનજો. શત્રુ મિત્રને સુખ દુઃખમાં સમતા કરી. ક્યારે લઈશો અવસરે તાનજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? અપૂર્વ કરણ ગુણ ઠાણું ક્યારે પામશું. સર્વશ્રેણીઓ કરશો ક્યારે સ્વાદજો. સહજાનંદ સ્વભાવ દશા મળશે કદા. યથાજ્ઞાનનો કેળવશો આધારજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? જન્મ ભલે મુજ ચારે જ્યાં ત્યાં જે મળો. પણ મુજ મળતો અપૂર્ણ ભાવજો. સુખ દુઃખ ને સહેવાની સાચી ધીરતા. સોહમ પદનું રટણ કરજો શુભ ભાવજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે? અનિત્ય અસરણ આદિ બારે ભાવના. ચૈત્રી પ્રમોદ આદિ ભાવના ચાલજો. પંચ
કેરી 25 ભાવના ભાવીને ઉતરશો ક્યારે વારજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. 563 જીવ જીનેશ્વરે માકિયા ચાર ગતિના સકાયદારી સર્વજો, સૂક્ષ્મ ને બાડર ત્રસને સ્થાવર જીવતી બ્રાહ્મણ કરશો ભોગે કરજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. મરણ ભવો ભવ છીનવર ને જપતા થજો સિદ્ધ નિરંજન કેરો મળજો જ્ઞાનજો, સૂર્યવાચક ને મુનિવરતી નિર્યામણા જીનવાણીમાં સિદ્ધ રહો એક જાણજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. સિંહ સમો થઈ સંયમ આરાધું સદા સત્ય ભાવ મન વશકાયા મુજ પાયજો, કપૂર થકી પણ આત્મ ઉજ્જવલતા વધે ક્ષમા પ્રભુ કલશ ધર્મ મળે સુખદાયજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. જીન ઉત્તમ પદ પદ્મ તણી સેવા મળે લોક નિરખવારો જમણે દિન રાજજો, શાસન કીર્તિ કસ્તુરી ખુશ્બુ મળી ચિંતામણી સમ મળે મને રાજજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. વીર વીર વિતરાગ પ્રભુના નામનો પ્રણી પ્રદેશે કઈ લેજો મુજ વાસજો, સિદ્ધિ સુખોની વાંછા વીણ વાંછા બધી મુજ મનમાંથી દૂર રહો રસવાસજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. વિનય ચતુર્વિધ સંગતનો મળજો મને ભક્તિ મળજો મુનિવર શ્રી જીનદેવજો, સુંદર શાસન મળજો શ્રી વિતરાગનું બહુ મળજો જીન ચરણોની સેવજો, પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે આવશે. हे प्रभु ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा 20वीं गाथा सीधी लेते हैं अभी आज 563 जीव जिनेश्वरे भांकिया चार गतिना छकाय धारी सर्वजो सूक्ष्म ने बादर कृष्ण स्थावर जीवधी त्रिविध खामणा करशु मुखी गर्वजो। जीवों के कितने प्रकार टोटल गिनाए हैं जीव विचार में 563 प्रकार गिनाए हैं। इसमें समझो कि रस और स्थावर 5 स्थावर पृथ्वी पानी वायु अग्नि वनस्पति रस में इंद्र 3 चरण में पंचेंद्रिय उसके भी कई कई प्रकार विभाग हैं देव मनुष्य किरण नारक प्रत्येक साधारण पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बाहर ऐसे टोटल कुल मिला के जलचर थलचर खेचर सब मिला करके 563 भेद जीव विचार प्रकरण में बताए गए हैं। आप में से किसी ने इसके अर्थ का अध्ययन किया है? जीव विचार के अर्थ का अध्ययन एक पशु है, अच्छी बात है। हाँ, तो उसके विवेचन की किताबें भी आती है, ऐसी किताबों का वांचन मनन करते रहना चाहिए। और हो सकता है कि इसके ऊपर के जो प्रवचन अथवा तो विवेचन ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हो सके, तो उस प्रकार से भी कोशिश करनी चाहिए। तो
अभी उसका विस्तार कर। हाँ अच्छा, हाँ, साहब जी ने उसका गुजराती में पद्यानुवाद भी किया है। ऐसे तो प्राकृत भाषा में है जीव विचार प्रकरण, इसका गुजराती में पद्यानुवाद भी हमारे गुरुदेव श्री ने किया है। जिनोलॉजी में सिर्फ और जिनोलॉजी के दूसरे विभाग दूसरी किताब में वो सब दिया हुआ है। तो हाँ, परीक्षा भी देनी चाहिए जिनोलॉजी की किताबों की। तो ऐसे चार गति कौन सी? देव, मनुष्य, तिरंच और नर, ये चार गतियां हैं। छह काय, कौन सी छह काय? पृथ्वी काय, अप काय, तेजु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। काय माने काया, शरीर। पृथ्वी जिनकी काया है, ऐसे जीवों को पृथ्वी काय कहते हैं। हाँ? पृथ्वी के अंदर उद्दयी वगैरह हो वो तो तेंद्र जीव है। प्योर जो पृथ्वी है देखते हैं, मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, शिला है, ये सब विविध कई प्रकार है, नमक वगैरह भी है, ये सब पृथ्वी का एक है। अप काय, अप माने पानी, पानी जिनकी काया माने शरीर है, ये वो जीव इनको अप काय कहा जाता है। पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह होती है, दूसरे भी छोटे छोटे जंतु होते हैं, वो अप काय नहीं है, वो तो बेंद्री वगैरह हैं। लेकिन खुद प्योर पानी, वो भी असंख्य जीवों के असंख्य शरीरों का पिंड है, एक बूंद भी। और अब काय, तेऊ माने अग्नि जिनकी काया है, ऐसे जीव वो देव काय। फिर वायु काय, वायु पवन माने हवा, वो जिसकी काया माने शरीर है, ऐसे जीव भी उसको वायु काय कहते हैं। और वनस्पति जिनकी काया है, ऐसे जीवों को वनस्पति काय कहते हैं। वनस्पति काय में दो भेद है, प्रत्येक और साधारण। एक शरीर में आमतौर पर तो एक ही जीव होता है, एक आत्मा होती है, लेकिन वनस्पति में विशेष होता है। कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें एक शरीर है और आत्मा अनंत होती है। आत्मा अरूपी है। आत्मा हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी फैल जाती है, हाथी जितनी, और चींटी के या बैक्टीरिया के शरीर में जाती है तो इतने में समा सकती है। यही आत्मा की विलक्षणता है। जैसे रबर होती है, खींचते तो लंबी होती है, नहीं तो वाष्प छोटी भी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी स्थितिस्थापक है और अरूपीय दृश्य है। तो एक सूक्ष्मतम शरीर में अनंत आत्माएं भी एक साथ समा जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? निगोड भी कहते हैं, जमीन अथवा अनंत काय भी कहते हैं। अनंत जीवों की एक कॉमन काया शरीर, उसको अनंत काय भी कहते हैं। तो ऐसे जो भी जीव हों, छकाय के सूक्ष्म जीव हों, बादर जीव हों, बादर माने स्थूल, जो अपनी आंखों से दिख भी सकें, अभी आंखों से ही दिखे तो माइक्रोस्कोप से भी देख सकें। ऐसे जीवों को बादर जीव, भले एकदम छोटे हों, अपनी आंख से सीधे नहीं दिख सके, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े तो भी वो जीव इतने सूक्ष्म होते हुए उसको बादर कहा है। बादर माने स्थूल, तो बड़े जीव। और सूक्ष्म तो कैसे होते हैं? वो किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, और पूरे चौर राजलोक में हर जगह पे वो समाये हुए हैं। वो सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेऊ का है, सूक्ष्म वायु का है और सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है। प्रत्येक वनस्पति का में सूक्ष्म नहीं होता है, उसमें जो सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है उनको निगोद भी कहते हैं, सूक्ष्म निगोद भी कहते हैं। जमीन पर वगैरह है जो, वो बादर निगोद भी कही जाती है। तो निगोद माने एक शरीर में अनंत आत्माएं जो साथ में रहते हैं, ऐसा जो अनंत जीवों की एक काया, उसको निगोद कहते हैं। तो असंख्य निगोद के सूक्ष्म गोलों से पूरा विश्व भरा हुआ है। वो गोले भी इतने बारीक है कि माइक्रोस्कोप भी शायद नहीं दिखे। विशिष्ट ज्ञानी भगवत ज्ञान दृष्टि देख सकते हैं। और एक एक गोले के अंदर असंख्य निगोद शरीर होते हैं और एक एक शरीर के अंदर अनंत आत्मा होती है। और हम सब भी अनादि काल से ऐसे सूक्ष्म निगोद में थे। इसमें से कोई सीधा आत्मा हुआ तो हमारा नंबर बार आने में लग गया, हमारी लॉटरी लग गई। कितने हम भाग्यशाली हैं जो मनुष्य जन्म को भी पा चुके हैं। तो सूक्ष्म जीव और बादर माने स्थूल जो आंख वगैरह से देख भी सकते हैं। दस जीव और स्थावर जीव, स्थावर माने एक जगह पे स्थिर हो, ऐसे पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति, 5 स्थावर हैं, अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं। और दृश्य माने बेइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव जो अपनी इच्छा के अनुसार हलन चलन मूवमेंट कर सकते हैं, उनको 10 जीव कहा गया है। तो इस सभी जीवों के साथ मैं क्षमापना करूंगा। उनकी गर्व जो त्रिविध माने 3 प्रकार से, मन से, वचन से और काया से। काया से झुकना, हाथ जोड़ना, वचन से बोलना, मिच्छामि दुक्कडम, मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हो। और मन से भी नम्र क्षमा याचना का भाव होना चाहिए।
अपने अपने अपराध का इकरार होना चाहिए। तो इस प्रकार से सच्ची क्षमा अपना मन वचन काया से सभी जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ तो विशेष तो करनी है, लेकिन पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति वगैरह छोटे बड़े सूक्ष्म बादल सभी जीवों के कितनी विराधना हमारी प्रतिदिन हिंसा हो रही है। तो सभी जीवों से भाव से क्षमा याचना करनी है। और खास करके मनुष्य में जो हमारे साथ में रहते हो, हमारे परिवार में हो, कुटुंब में, घर में या पड़ोस में हो, उनके साथ अगर मन दुख हो गया, झगड़ा हो गया है, तो भी मुखी गर्व में अहंकार को छोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए, नम्र बन करके। अहंकार इसमें बीच में रुकावट बनता है कि मैं क्यों क्षमा याचना करूं, सामने वाला करे, ये हमारा अहंकार है। नम्यो ते सौने गम्यो, प्रभु ने पढ़ते गम्यो, जो झुकता है वो अब करता तो मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, जिसमें प्राण होते हैं, वही झुक सकता है। बाकी अक्कड़ रहता है वो तो मुर्दा होता है, अक्कड़ वो झुक नहीं सकता है। तो हमें अगर प्राणवान हम हैं तो हमारा फर्ज है कि हमें झुकते रहना चाहिए। इससे कोई हमारा विपुल कर्मों की निर्जरा होती है। नवकार महामंत्र में इसलिए नमो 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 5-6 बार बताया। उसमें नमो पहले, अरिहंत आनंद पीछे, अनादिकाल से अहंकार, यही हमारी बड़ी बाधा है। वास्तव में हम ये तो है ही नहीं, इस नाम तो शरीर का है, वो नाशवंत है। हम तो अनामी अरूपी ऐसे आत्मा है, लेकिन अज्ञानता के कारण इस जो दिख रहा है ये शरीर के, इसको हमने अपनी जात मान रखी है, इसका नाम को अपना नाम मान रखा है, और उसके लिए कुछ होता है तो हमें अहंकार आ जाता है और फिर क्रोध भी गिर आता है। तो क्रोध, गर्व, अहंकार को छोड़ेंगे तभी अरहम बनेंगे। अहम छूटेगा, अहंकार नाश होगा, तभी अरहम स्वरूप अपना जो परिवार का स्वरूप वो प्रकट होगा। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, अहम रे अहम तू जाने मरी, बसी बाकी रहे ते हरि। अहम मर जा, निकल जाए हम भाव, तो परमात्मा स्वरूप भीतर से प्रकट होता है। पत्थर में भी परमात्मा की प्रतिमा तो है, लेकिन अधिक जो भाग होता है वो निकल जाता है शनि से, तो फिर परमात्मा तो थे अंदर में, वो प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से हम जीव भी सभी परमात्मा तुल्य हैं ही, लेकिन ये राग द्वेष आदि अहंकार आदि दोष जो है वो कचरा निकल जाए तो अपना अरहम स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये 20वीं गाथा में ऐसी भावना पाई कि ऐसा दिन कब आएगा कि मैं सभी जीवों से क्षमा ना करूँ, किसी भी जीव के साथ मैं अक्कड़ न रहूँ, अबोला न रहूँ, वैर न रखूँ, बदले की भावना न रखूँ, हमेशा नम्र होकर के मैं बार बार सभी को क्षमाता रहूँ। ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा ये भगवान। अभी आगे 21वीं गाथा में कहते हैं, मरण भवो भव जिन वर ने जपता थजो। एक दिन सभी को जाना तो है, जिसका नाम उसका नाश होता ही है, संयोग है वहाँ वियोग भी होता ही है, शरीर के साथ संयोग हुआ है, एक दिन शरीर छूटने वाला है। यद्यपि हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, लेकिन शरीर के साथ अभी दूध और पानी की तरह घुल मिल गए हैं। तो इस शरीर का जो वियोग होता है उसको व्यवहार में मरण कहा जाता है। लेकिन अंतिम समय में समाधि मरण हो, ये बहुत महत्व की बात, जरूरी बात है। पूरी जिंदगी में कितना धर्म किया हो, अंतिम समय में अगर आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान से मृत्यु हो तो तिरिंच अथवा नरक दुर्गति हो जाती है। इसीलिए कहा न, अंत्य जैसी मति वैसी होती है दूसरे भाव की गति। इसलिए हमें अंतिम समय में शरीर में वेदना तो बहुत होती है, प्राण निकलते हैं तब, लेकिन जिसका हृदय निर्मल है, जिसके कषाय मंद है, भगवान के जो भक्त है, नमस्कार महामंत्र का आराधक है, जप और ध्यान की साधना प्रतिदिन करता है, तो ऐसा जीव जो है वो सहजता से भी प्राण शरीर को छोड़ सकता है। हाय हाय करके नहीं मरता, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाऊंगा, क्या होगा नहीं होएगा। है सोचे जो जन्मा उसका तो मृत्यु होता है, लेकिन मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर रूपी जीर्ण वस्त्र छूटेगा तो नया अच्छा वस्त्र मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में आराधना खूब की होती है, इसलिए उसका आत्मविश्वास होता है कि नया शरीर मिलेगा, वो मना मानव का या देव का मिलेगा, और वो भी अच्छा मिलेगा जिससे अच्छी साधना करेंगे। और जो
अज्ञानता के कारण, जन्मस्थ अवस्था के कारण गलतियां, भूल, दोष, पाप हुए हो, उसकी अगर निखालसता से आलोचना लेकर के हम शुद्धि कर लेते हैं तो फिर मृत्यु का भय या परलोक का भय भी हमें रहता नहीं है। तो जाते समय भी भगवान का नाम लेते लेते जिनवर जिनेश्वर परमात्मा का नाम जपते हुए ये शरीर कब छूटेगा मेरा। चित्त निरंजन केरु बल जो ध्यान जो अंतिम समय में मेरा चित्त, मेरे चित्त में ध्यान शरीर का न हो, मेरे परिवार वगैरह का न हो, किसका ध्यान हो? शुद्ध परमात्मा जो निरंजन निराकार शुद्ध आत्मा है, उसका ध्यान करते हुए ये प्राण कब निकलेंगे शरीर में से। बाकी तो अनादिकाल से जितनी आसक्ति रखेंगे तो अंतिम समय वही सब याद आएगा। देवता भी अंतिम समय उसका बहुत बुरा जाता है। जो मिथ्यासी देव होते हैं ना, तो देव लोग के भौतिक सुख में आसक्त होते हैं, रंगराग महोत्सव भोग विलास में, तो अंतिम 6 महीने बाकी रहते हैं तब उनको पता चल जाता है, उनकी शरीर की कांति तेज कम होता जाता है, कल्पवृक्ष की माला गले में वो भी मुरझाती रहती है और शरीर के चक्कर भी आने लगते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि अभी बस 6 महीने हमको विदाई लेनी है। तो इतने असंख्य वर्षों तक जो देवलोक के भोग सुख भोगे, उसकी जो आसक्ति की, तो इन सबको ये देव विमान, ये रत्न, ये वावड़ियाँ, ये अप्सराएं सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अरे रे, और वो भी मनुष्य था पशु पक्षी के गर्भ में रहना पड़ेगा। वो सब जान करके इतना रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी तो अपना सिर भी पटकते हैं दीवार के ऊपर भी। इतना उनको आत्मभान भयंकर ज्ञान होता है। वो अधिकांश देव फिर मर करके कहाँ जाते हैं? पृथ्वी का आपका या वनस्पति का उत्पन्न होते हैं। कोई थोड़े से ही सम्यक दृष्टि होते हैं मनुष्य गति में, बाकी 13 पंचेंद्रीय गति में भी जाते हैं। तो इसीलिए अंतिम समय अभी हमारा नजदीक आ रहा है, कब आएगा अचानक कुछ पता भी नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो हमें एवर रेडी रहना है, प्रतिदिन प्रतिक्षण सावधान और जागृति पूर्वक जीना है। चलते फिरते भगवान का नाम स्मरण करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। और अंतिम समय में सूरी यानी आचार्य भगवान, आचार्य भगवान के नाम से सूरीश्वर जी या सूरी बोलते हैं ना, कोई कोई नहीं बोलते ऐसे ही। गुणसागर महाराज ऐसे बोल लेते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। गुणसागर सूरीश्वर जी महाराज है। फिर वाचक, वाचक माने उपाध्याय, जो साधु भगवंतों को पढ़ाते हैं, उपाध्याय पद, जो शास्त्रों के पारगामी होते हैं, साधु साधु को पढ़ाते भी हैं। वो वाचक माने जो वाचना देते हैं, पाठ देते हैं, अध्ययन करवाते हैं। तो ऐसे उपाध्याय भगवान अथवा मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि, उनसे मेरा अंतिम निर्यामणा, अंतिम समय होता है ना, जब कोई ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु साधी भगवत पास में हो, वो मुझे सभी जीवों से क्षमापना करवाएं, नवकार मंत्र, चार चत्तारी मंगलम वगैरह सुनाएं, पुण्य प्रकाश का स्तवन वगैरह सुनाते रहें। तो ऐसा दिन मेरा कब आएगा? मेरे बेटे बेटियां वगैरह न हो या न हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये कोई भजन में, कमती में के भजन में आता है ना कि सगा नहीं पण संतोनो मेड़ो गुण प्रभु ना गवाए। उस अंतिम समय में मेरे सगे वाले रिश्तेदार पास आसपास में हो तो कहीं उसमें उसमें ध्यान चला जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, तो फिर दुर्गति हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अंतिम समय में आचार्य उपाध्याय साधु साधी भगवान है विशिष्ट साधर्मिक, विशिष्ट धर्म साधर्मिक भी पहले हों और उनके मुख से नवकार महामंत्र वगैरह धर्म श्रवण करते करते, भगवान का नाम स्मरण करते करते सहज रूप से समाधि मरण मेरा हो। जिन वाणी में चित्त रहो एक ध्यान, जो अंतिम समय में जो अच्छे स्तोत्र मंत्र वगैरह सुनाते हो तो मेरा चित्त उसी में लीन हो, वेदना में शरीर में लीन न हो या संसार की और किसी भी चीज में मेरा चित्त लीन न हो, किंतु ध्यान में भगवान की वाणी में मेरा चित्त लीन हो। अंतिम समय में ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा? तो समाधि मरण होगा तो ही अगले जन्म में सदगति होगी। अगर मृत्यु समय में असमाधि आर्तनाद हो गया तो नरक या तिरंज गति रूपी दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए हमें प्रतिक्षण प्रति समय जागृत और सावधान रहना है। तो चलते फिरते हरिहंत 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 काम करते करते भी हरिहंत 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 ऐसा अभ्यास करना है। कोई काम करते समय उपयोग का बताया गया है, अगर हाँ, लेकिन देखो हमारे चित्त की स्थिति ऐसी है ना, अक्सर हम अनुभव करते होंगे शरीर से काम एक होता है, मन में तो कितने दूसरे विचार चलते ही रहते, डबल रोड में कम चलता ही रहता है। तो इससे तो अच्छा है कि हम भगवान के नाम स्मरण या कोई ऐसी स्तवन वगैरह स्तुति वगैरह उसमें हमारे चित्त को जोड़ते रखें।
डबल, और एक समय में एक उपयोग रहता है, लेकिन समय तो कितना बारीक है, सेकंड का असंख्यात हिस्सा उसको समय बोलते हैं। तो हम छद्मस्त हैं, इतने वो समय को पकड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे तो क्षण में तो उपयोग रह सकता है डबल, समय में नहीं रहता, लेकिन क्षण में तो मिनट में सेकंड में रह सकता है उपयोग दोनों कार्यों में। आचार्य भगवत सूत्र में कहते हैं कि हमारे पास तो कितने श्रावक आते हैं तो उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। उस वक्त भी 15% केवल हमारा उपयोग, हमारा ध्यान तो उसमें लगाना पड़ता है, बाकी का 85% इतना हमारा ध्यान वो हमारे समय रहता है, उस समय भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर 22वीं गाथा में कहते हैं सिंह समोथई संयम आराधु सदा। ऐसा धन्य जी मेरा कब होगा कि शेर की तरह मैं संसार रूपी उपास से बाहर निकलूंगा और शेर की तरह संयम का स्वीकार करूंगा और शेर की तरह उसका पालन भी करूंगा। ऐसे चतुर्भंगी आती है, 4 प्रकार आते हैं। कोई दीक्षा लेते हैं बड़े वैराग्य से लेते हैं एकदम शेर की तरह, लेकिन बाद में अनादिकालीन जो दोष है, संज्ञा वगैरह हैं, उनके कारण वापिस वो ढीले हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं लोमड़ी जैसे, सियार जैसे हो जाते हैं। कोई निकलते समय थोड़ा हिचकिचाते भी होंगे, लेकिन बाद में अच्छी तरह एकदम शेर की तरह अच्छा पालन करते हैं। कोई निकलते भी शेर की तरह है, पालन भी शेर की तरह करते हैं, और निकलते समय रिक्शा लेते समय भी ढीले होते हैं, बाद में भी ढीला रहते हैं। ऐसे चतुर्भंगी है, 4 प्रकार है। उसमें से पहला प्रकार शेर की तरह मैं चारित्र ग्रहण करूं और शेर की तरह कितने भी परीक्षा उपसर्ग वगैरह आए मैं जरा भी डिगूं नहीं, डरूं नहीं। इस तरह संयम का पालन कब करूंगा मैं? सत्य भाव मन वच काया मुझ थाय जो, मन से वचन से काया से सत्य भाव हो, मैंने वाणी का भी सत्य, मन से भी सत्य, सत्य के आत्मा के विचार और वर्तन भी मेरा सम्यक हो, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के मुताबिक हो। इस प्रकार से मन वचन काया से सत्यमय जीवन जिएंगे तो ही हम सत्य यानी आत्मा, शाश्वत आत्मा, उसका अनुभव कर सकेंगे। कपूर थकी पण आत्म उज्ज्वलता बढ़े। कपूर सफेद होता है ना, भगवान की आरती के बाद ये कि मंगल करते हैं तब जलाते हैं, तो वो कितना उज्जवल सफेद होता है। उससे भी ज्यादा मेरी आत्मा की निर्मलता, आत्मा तो अरूपी है, कोई सफेद नहीं है आत्मा, उसका कोई रूप रंग भी है नहीं, लेकिन निर्मलता पवित्रता माने जरा भी राग या देश का अंश में बचे से वितराग दशा, लगभग वितराग जैसी दशा ऐसी मेरी कब होगी? 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी कोई बुरा विचार ना आए किसी के प्रति, राग का या द्वेष का या मोह का या काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, ऐसा कोई दुर्विचार दुर्भाव 1 सेकंड के लिए भी ना आए। निरंतर उत्तम शुभ अच्छे भावों में मैं रहूं। इस प्रकार से कपूर से भी ज्यादा मेरी आत्मा की निर्मलता पवित्रता शुद्धि कब होगी? अब तो अधिकांश समय तो दुर्भ्यान में शायद जाता होगा, कभी कभी अच्छा विचार आता होगा, लेकिन निरंतर अच्छे विचार अच्छे भावी बने रहे, तो अच्छे निमित्त अच्छे वातावरण में हम रहेंगे तो ये सकल शक्य होगा। संसार में रह करके निरंतर टिकाना अच्छे भाव बहुत कठिन है। तो काजल की कोठरी में रह करके अथवा कोयले की खदान में काम करते हुए अपने सफ़ेद कपड़े के ऊपर जरा भी दाग कपड़ा बेदाग रखना तो जितना कठिनतम है, इससे भी ज़्यादा कठिनतम ये बात है कि संसार में रहते हुए ऐसे शुद्ध पवित्र रहना। तो इसीलिए तो भगवान ने संयम चारित्र का मार्ग बताया है। यह निरंतर शुभ निमित्तों में रहते हैं, 24 घंटे स्वाध्याय तप भक्ति इसमें रह सकते हैं। इसीलिए इस भाव करेंगे तो ऐसा संयम जीवन भी उदय में कभी न कभी आएगा। दूसरा एक श्लोक आता है, उसमें और भी कई उपमा दी। हार, सच्चे मोती का हार कितना उज्जवल होता है। नीहार माने बर्फ कितना सफेद होता है, हिमालय पर्वत वगैरह। गोक्षी गाय का दूध, हार गोक्षंक गोक्षीर कुंड माने जाई का फूल सफेद होता है। हिंदू माने पूर्णिमा का चंद्र जैसे शरद पूर्णिमा होता है। और ऐसे इससे भी ज्यादा मेरी आत्मा की उज्ज्वलता, मेरी चित्त की उज्ज्वलता, निर्मलता, स्वच्छता और पवित्रता मेरी कब होगी? और क्षमा प्रमुख रस धर्म मले सुखदाय जो। क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म, यति धर्म मान साधु का धर्म बताया गया है, जो सुख को देने वाला है धर्म।
वो मेरे जीवन में कब आत्मसात होगा। तो 10 प्रकार कौन से? खंती मद्दव, 9 तत्व की गाथा अगर किसी को आती है तो उसमें आते हैं खंती मद्दव अज्जव मुक्ति तव संयमे अबोधव्ये सत्यम सोअम अकिंचनम च ब्रह्मम च जयी धम्मो। जयी माने यति माने साधु, तो यतना से जयना से जीवन जीते हैं उसको यति माने साधु कहते हैं। उसका धम्मो माने धर्म। क्या है? खंती माने शांति, क्षमा। कोई कैसा भी हमारे प्रति व्यवहार करे हमको सब क्षमा ही रखनी है, उसको माफी देनी है, उसके प्रति बदले लेने का विचार भी नहीं करना है, वो खंती। मद्दव, मार्दव माने मृदुता माने नम्रता। क्रोध का ऑपोजिट क्षमा है और मान का ऑपोजिट नम्रता अथवा तो मृदुता है। मैं अहंकार न करूँ किसी भी चीज़ का, ज्ञान का, तप का, बल का, परमेश्वर का, रूप का, किसी प्रकार का अहंकार मैं नहीं करूँ, क्योंकि हमारे से भी कई गुणे है ना। महापुरुष शेर के माथे सवा से होते हैं ना, वर्तमान काल में भी है और भूतकाल में कैसे कितने महापुरुष हो गए हैं। तो हम क्या अहंकार करें? इतने दोष हमारे में पड़े हैं, तो अहंकार किस चीज़ का करें? तो मार्दव माने मृदुता, नम्रता, कोमलता। फिर है अज्जव माने आर्जव अर्थात सरलता। माया का ऑपोजिट सद्गुण क्या है? सरलता। जैसा मन में ऐसी वाणी में ऐसा वर्तन में, बरोबर। तो सरलता। चौथा है निर्लोभता अथवा संतोष। लोभ का ऑपोजिट सद्गुण कौन सा है? ग्रीड। ग्रीड, लोभ मन ग्रीड, उसका ऑपोजिट सद्गुण है संतोष। जो मिला बस बहुत है। जे असे ते चाल से पाव से नभ से जेऊ वसे जेटू वसे चाल से पाव से नभ से। चलेगा चलेगा कोई बात नहीं, जो है जितना है चले, बहुत है, इनफ है, काफी है। इस प्रकार संतोष भाव। तो क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, 4 हुए। 4 कसा के ऑपोजिट 4 सद्गुण। मुक्ति तप, 5वां है तप, 12 प्रकार का तप। फिर है संयम, 17 प्रकार का संयम। मुक्ति तब संयमे बोधव्ये। सत्यम माने सत्य, मन वचन काया से सत्य भाव। सोवम माने शौच माने पवित्रता, मुख्य रूप में मन की पवित्रता। शरीर को तो, कपड़े को तो स्वच्छ रखने का बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो गंदे हो ही जाते हैं, लेकिन मुख्य शौच माने मन की पवित्रता, कोई अशुभ बुरा विचार न आए, वो पवित्रता। और सत्यम सोवम ब्रह्म, सत्यम सोम अकिंचनम, अकिंचन्य, निष्परिग्रहिता, कुछ भी नहीं, कम से कम जो अपनी जरूरियत हो इतना ही, बस अधिक कुछ भी नहीं, वैसे अकिंचन पर निष्परिग्रहिता। और ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य, मन वचन काया से। ब्रह्म माने आत्मा में चर्या यानी रमणता करना। 10 प्रकार का साधु धर्म भगवान ने बताया है। हमारे यहाँ तो कल्पसूत्र परिश्रम जब आते हैं, परिश्रम के 5 कर्तव्य, फिर कल्पसूत्र का वांचन ऐसे करते हैं। दिगंबरों का जो 10 दिन का मनाते हैं परिश्रम, और वो 5 से पूर्णिमा तक या 6 से पूर्णिमा तक करते हैं 10 दिन। तो उसमें हर एक दिन एक जो 10 प्रकार यति धर्म है ना, उसके ऊपर व्याख्यान विवेचन वगैरह स्वाध्याय वगैरह होता है। तो ये 10 प्रकार का क्षमा वगैरह, प्रमुख माने क्षमा जिसमें मुख्य है, ऐसा 10 प्रकार का जो यति श्रमण धर्म, साधु धर्म, जो सुख को वास्तव में सच्चे सुख को देने वाला है, वो मुझे कब प्राप्त होगा, कब आत्मसात होगा। ऐसा धन्य दिन मेरा कभी आएगा। हाँ, ये भी जैनोलॉजी में है। हाँ, जैनोलॉजी। हाँ, तो जो जो छोटी उम्र वाले हैं उनको खास अध्ययन करना चाहिए, परीक्षाएं भी देनी चाहिए। जैनोलॉजी के, जैन शासन के कैसे कैसे अद्भुत पदार्थ हैं, उसका सार ये जैनोलॉजी की किताबों में संग्रहित किया जाता है। चलो आगे, 23वीं गाथा। जिन उत्तम पद पद्म तणी सेवा मले, रूप निरखवा रोज मले जिन राज। ऐसा दिन दंड मेरा कब आएगा कि जिनेश भगवान के उत्तम माने पवित्र ऐसे जो पद्म, पद्म माने चरण, पैर, कमल, पद्म माने कमल, चरण कमल, उनकी सेवा मुझे रोज मिले। साक्षात भगवान के पास चारित्र अंगीकार करो और भगवान के चरण कमल की सेवा भी करो, और साथ में रूप निरखवा रोज मले जिनरा, हर रोज साक्षात भगवान के रूप का मैं दर्शन करने के लिए भाग्यशाली बनूं। भगवान के सानिध्य में जन्म हो और भगवान के हाथ से चारित्र अगर अंगीकार करते हैं, रोज भगवान का 3 घंटे 6 घंटे भगवान की देशना सुनने को मिलती है। भगवान का अद्भुत रूप होता है। तीनों काल के सभी इंद्र, इंद्राणियाँ, देव देवी, अप्सरा सब, और मनुष्य में भी वो ऐसे हो ब्यूटी, तो वो सब का रूप कल्पना से इकट्ठा किया जाए
मानो तीनों काल के सभी देवता गिरे, तो उसको कल्पना से तराजू लो, उसके एक पलड़े में रखा जाए, अथवा तो वो सारा जो रूप हो वो अयन तीर्थंकर भगवान के चरण का जो अंगूठे का नख है ना, उसके पास में रखा जाए, तो भी उससे भी ये नख की कांति तेज ज्यादा होता है, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो ऐसे परमात्मा, अब नाखून ऐसे हैं तो चेहरा ना शरीर कैसा होगा, और वो रूप भी ऐसा कि देखने वालों के विकार दूर हो जाए, विकार नष्ट या शांत हो जाए, ऐसा निर्विकारी रूप होता है। उसका रोज दर्शन करने मिले, ऐसा धन्य दिन हमारा कब आएगा। लेकिन उसके लिए वर्तमान में हमें जो स्थापना निक्षेप के रूप में भगवान मिले हैं, उनका हर रोज भाव से दर्शन करेंगे, भक्ति पूजा वगैरह करेंगे, तो ऐसा पुण्य बंध होगा कि किसी जन्म में साक्षात भगवान का रूप दर्शन और वाणी श्रवण का मौका मिलेगा। इसी जन्म में जो मौका मिला है उसमें आलस से प्रमाण करेंगे, हाँ, तो ऐसे फिर ये बोलेंगे तो इससे कोई ज्यादा बनने वाला नहीं है। इसमें इस जन्म में जितना जितना हमको इस अच्छी सामग्री मिली है अच्छी, उसका सदुपयोग पूरा करना है, भगवान की वाणी श्रवण करनी है। तो वर्तमान में गुरु भगवंतों के मुख से जो वाणी का मौका मिला है उसका बहुमान पूर्वक श्रवण करेंगे, तो आगे चल करके किसी भाव में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मुख से भी देशना श्रवण करने का मौका मिलेगा। रूप निरखवा रोज मिले मले जिन राज जो, देखो इसमें रचयिता जो है रूप विजय जी महाराज, उनका नाम इनडायरेक्टली आ गया, सीधा नहीं। उनके गुरु महाराज का नाम था पद्म विजय जी। अच्छा, मेरे ख्याल से जिन उत्तम विजय जी, उनके शिष्य पद्म विजय जी, उनके शिष्य रूप विजय जी, इस प्रकार से अपना नाम, गुरु का नाम, दादा गुरु का नाम, तीनों साथ में आ गया। हमारे गुरु ने स्तवना जो स्तवन बचा ले, उनमें गौतम नीति गुण कहे, तो अपना नाम गुण माने गुण सागर श्वरी। उनके गुरु थे नीति सागर जी घणीवर महाराज, उनके भी गुरु थे राधा साहब श्री गौतम सागर श्वरी महाराज। तो गौतम नीति गुण कहे, तो अपने जो गुरु के वडील होते हैं तो उनके प्रति भी आदर भाव व्यक्त हो गया है। पहले उनका नाम, लास्ट में अपना नाम, और इतना नाम भी यहाँ पर इनडायरेक्टली रखा है, डायरेक्टली वो नहीं रखा है कि मैं रूप विजय कहता हूँ, ऐसा नहीं, सीधा रूप निरखवा रोज मले जिन राज जो, शासन कीर्ति कस्तूरी कुशलो मले, जिन शासन की कीर्ति वो उसको कस्तूरी की उपमा दी गई है। कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होता है, सुगंधित होता है। तो जिन शासन की कीर्ति, चारों ओर जिन शासन का जय जयकार होता हो भगवान का शासन का, वो कस्तूरी, उसकी खुशबू माने सुवास, सुगंध, चारों अच्छे समाचार ही मिलते रहे। संप्रति महाराजा हर रोज दातुन कब करते थे, सबसे पहले ऐसे समाचार को दे कि आज अमुक जगह पर नए जिन मंदिर की भूमि पूजन खाट मुहूर्त हुआ है, ऐसे समाचार अपने सेवकों द्वारा मिले, उसके बाद ही दातुन करते थे। तो ऐसे अच्छे कहीं दीक्षा हो रही है सूरत में, अहमदाबाद में, पालीतारा में, कई बार 50, 60, 70, 75, 80 एक साथ इतनी दीक्षाएं आजकल भी ऐसे विलासी काल में भी होती है। तो वो भी ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, करोड़ाधिपति, अरबोपति, उद्योगपति भी दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे अच्छे समाचार, कहीं मंदिर में गए, आमंत्रण पत्रिकाएं देखी, उसमें पढ़ा, या किसी के मुंह से सुना, या व्हाट्सएप में आपने देखा सुना, हाँ, तो ऐसे अच्छे समाचार ही हमको मिलते रहे जिन शासन के। कोई ऐसा गलत समाचार, अखबार में तो अधिकांश गलत समाचार ही होते हैं कि या चोरी हुई, या खून हुआ, ये हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसे ही। तो ऐसे समाचार नहीं मुझे सुनना भी नहीं चाहूँ, पढ़ना भी नहीं चाहूँ, बस अच्छे समाचार ही मिलते रहे। जैसे समाचार मिलेंगे ऐसे हमारी भावधारा बनेगी। तो अच्छे वातावरण में ही रहना चाहिए, अखबार वगैरह हाँ जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छे मित्र रखना चाहिए, और अच्छे दृश्य देखने चाहिए। चिंता मणि सम मले मने गुरु राज जो, ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा। हाँ, गौतम स्वामी सुधर्मा जानी जैसे, हाँ, गुरु भगवंत मुझे मिले, गणधर भगवान गुरुराज के रूप में। चिंतामणि रत्न होता है, देवता से अधिष्ठित होता है, उसके पास जो हम चाहें वो मिल सकते, लेकिन वो तो भौतिक चीजें देता है, आध्यात्मिक चीजें नहीं दे सकता है। जबकि गुरु भगवंत तो चिंतामणि रत्न से भी अधिक है सदगुरु, वो हमें आत्मा का अनुभव करा सकते हैं, और मुक्ति भी उनकी कृपा से हमारी हो सकती है। ऐसे उत्तम, या तो परम गुरु, जगत गुरु परमात्मा को जगत गुरु या परम गुरु कहा गया है, वो मिले, अथवा उनके शिष्य गणधर भगवान जो हो, गौतम स्वामी वगैरह, ऐसे सदगुरुओं को कब मिलेंगे।
लेकिन उसके लिए वर्तमान में हमें जितना भी मिला है, योग मिलता है आचार्य उपाध्याय साधु साधी भगवंतों का, उनके प्रति आदर रखेंगे और उनकी यथाशक्ति वैयावच भक्ति वगैरह करेंगे, तो इससे जो पुण्य होगा वो आगे चल करके कभी परम गुरु जगत गुरु या गौतम स्वामी गौतम जैसे गुरु हमको प्राप्त हो सकेंगे। अगर साधु साधु की उपेक्षा करेंगे, टीका करेंगे, निंदा करेंगे, तो फिर उनका दर्शन भी ऐसे अनार्य दर्शन उत्पन्न हो जाएंगे कि जहाँ कभी पूरी जिंदगी में कोई साधु संत का दर्शन तक भी हो सके नहीं। कितने देश ऐसे हैं ना। चलो आगे कहते हैं 24वीं गिला सेकंड लास्ट गाथा। वीर वीर वीतराग प्रभु ना नामनो प्रति प्रदेशे थई रहे जो मुझ वास जो। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश में, कुल के प्रत्येक बुंद में, दिमाग के प्रत्येक सेल में वो भगवान के नाम का स्मरण रटन चलता रहे, नींद में भी अजबा जब उनका ही चलता रहे। ऐसा धन्य कबेगा वीर 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 वीर। ऐसे दो ऐतिहासिक जो दृष्टांत है जिसमें वीर वीर का स्मरण चलता था। किनका? दैनिक महाराजा का। और दूसरा चंदनमाला, उसको भी जब मूला सेठानी ने गुस्से में आकर के उसको बंद कर दिया कमरे में, ताला लगा दिया, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, वीर 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 भगवान महावीर के नाम का स्मरण रटना करते करते समता पूर्वक धर्म ध्यान में रह टिक सकी। तो ऐसी स्थिति में कितना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होने की संभावना होती है। ये भगवान के नाम के केवल 2 अक्षर वीर वीर वीर, उसके आलम्बन से ऐसी विकट स्थिति में भी वो समता पूर्वक धर्म ध्यान में 3-3 दिन खाए पिए बिना भी रह सकी। इसी प्रकार चैनिक महाराजा, उनका बेटा था कौणिक, उसने भी राज्य के लालच में आकर के अपने पिता को राजगद्दी से उठा दिया, जेल में कैद खाने में बंद कर दिया, करवा दिया। ऊपर से खुले शरीर पर नमक में भिगोए हुए हंटर, उसका प्रतिदिन मेरे ख्याल से 100 या 500 मार मरवाता था। तो उसमें कितना उनको वेदना होती होगी। लेकिन उस समय भी वो भी प्रत्येक कोड़ा मार लगता है मौत तो वो माँ बाप रे मर गया बचाओ ऐसा चिल्लाएंगे। तो वीर भगवान सैनिक महाराजा क्या बोलते थे? वीर वीर वीर। प्रत्येक मार लगने पर वीर वीर बोलते थे। और बीच बीच में वो मारने वाला जेलर थक जाता था तो कभी अपने भुजाओं को ऐसे दबाता था, थोड़ा सांस लेता था। तब सैनिक महाराजा मंद मंद स्मित करते थे, स्माइल करते थे। उनको स्माइल करते हुए देख करके वो जेलर भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है, कि मैं मारते मारते थक जाता हूँ और आप इतना भयंकर मार खाते हुए भी हंस सकते हैं। तो सैनिक महाराज ने क्या जवाब दिया? ये जेलर, तू थक जाए इसमें आश्चर्य नहीं है। तू कौन है? छोटी सी मगध की पृथ्वी, उसका जबरदस्ती बन गया मालिक कौणिक, उसका तू गुलाम है, उसका तू सेवक है, उसका चिट्ठी का चाकर है। और मैं कौन हूँ? इन लोक के नाथ देवादिदेव, जो सर इंद्रों द्वारा सेवित हो जी, ऐसे परमात्मा महावीर शादी का मैं सेवक या भक्त हूँ। और वो भगवान ने हमें ऐसा तत्व ज्ञान का अमृत पिलाया है कि सुख या दुख जो भी अनुकूल या प्रतिकूल संयोग आते हैं वो उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इस जन्म या अगले जन्म में जो अच्छे या बुरे पाप कर्म या पुण्य कर्म किए उसी के अनुसार अच्छे या प्रतिकूल या संयोग हमको मिलते हैं। इसीलिए दूसरा जीव तो निमित्त मात्र है। भगवान ने सिखाया है हमको किसी जीव के निमित्त के प्रति द्वेष नहीं करना, उसको तो उपकारी के रूप में देखना कि मेरे कर्म क्षय में ये सहायक बन रहा है। इसीलिए मुझे न तो कौणी के ऊपर द्वेष आता है न तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध द्वेष आता है। भगवान ने सिखाया है शरीर भी मैं नहीं हूँ, मार पड़ रहा है तो शरीर को पड़ रहा है, मैं शरीर से भिन्न आनंद घन आत्मा हूँ। ऐसा तत्व ज्ञान का अमृत भगवान ने हमको पिलाया है, उसी का ये नतीजा है। ऐसी स्थिति में भी मैं आई कैन स्माइल, मैं हंस सकता हूँ, स्माइल कर सकता हूँ। तो ऐसा धनी हमारा कब आएगा? हर एक कार्य करते करते भगवान का नाम स्मरण, आपको जो शब्द पसंद हो, हरिनाथ तो हरिनाथ, हरिनाथ हरिनाथ वो करते हैं ना, गुरुदेव गुरुदेव, आपको जो अच्छा लगे, वीर वीर तो वीर वीर करो, हरियंत हरियंत करो, या अरहम 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 अरहम, अथवा अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः। छोटा मंत्र ले लो 4 अक्षर का,
और चलते फिरते काम करते करते भी मन में उसका स्मरण रटन करते रहो, तो ही अंतिम समय में भी सब नाम याद आएगा। नहीं तो अंतिम समय में आए वो होगी, अर्थ ध्यान होगा। चारों बेटे थे, 90 साल के पिता थे, और डॉक्टर ने कह दिया कि बस अभी कुछ मिनट बाकी है। ऐसे समय में भी पापा क्या बोलते हैं, छगन कहाँ है? अरे पिताजी मैं यहाँ इधर हूँ, आपके पास में, सिर के पास में। मगर अरे मगर मैं यहाँ हूँ। चारों के नाम लिए, चारों खटिया के 4 पायों के पास में खड़े बैठे थे। अरे तुम चारों यहाँ पर हो तो दुकान कौन संभालेगा? बिल्कुल मरने की घड़ी आ गई है, तब भी भगवान का नाम नहीं आता है यार। हाँ, दूसरे एक माँ जी थे, तो उनकी भी अंतिम समय था, तो वो वैष्णव परिवार था, तो सबने कहा माँ जी अब दूसरी सब चिंता छोड़ दीजिए, आप राम का नाम लो, राम 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 बोलो, लेकिन हराम तो राम शब्द एक बार भी बोले तो कितनी 1 घंटा तक दिक्कत होती, मशक्कत। दूसरी बातें करते हैं, इसका ख्याल रखना, उसको संभाल रखना, ये करना वो करना, लेकिन राम शब्द नहीं बोल सकते हैं। इतने में उनकी छोटी बहू घर में काम करती थी, आई, उसने देख लिया सारा मामला, उसको उपाय ख्याल में आ गया। घर में वापस गई, ठंडे पानी की भरी हुई बाल्टी ले आई, बाल्टी में पानी ले आई, और देखते ही देखते क्या किया, सबके सामने माँ जी को नहला दिया, अभिषेक कर दिया। अब मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हैं, वो अपनी सास का अभिषेक करके लगी। जैसे पानी उसके शरीर पर गिरा, राम 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 राम, ऐसे 8-10 बार बोलते 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 माँ जी ने परलोक में विदाई ले ली। सबको आश्चर्य हुआ कि हम 1 घंटे से पुरुष मेहनत करते थे, एक बार भी राम नहीं बोले। बहू ने तो कुछ कहा भी नहीं है, केवल पानी डाला और 8-10 बार राम 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 बोल के गए। चलो उसकी सदगति हुई होगी, सबको संतोष हुआ। उम्र तो बड़ी थी, जाने वाली थी। सबने बहू को पूछा, ये तुमने क्या चमत्कार किया? ये गंगा जल था या क्या था? गायत्री से अभिमंत्रित जल था, ये क्या था? उसने कहा कुछ नहीं, हमारे तालाब या कुएं का सादा पानी था। तो चमत्कार कैसे हुआ? बोलो, आप कहेंगे कोई? हाँ, कोई कहता है पानी अचानक गिरा तो वो मर गया, ऐसी हो सब निकल सकते हैं। राम राम कैसे आया? तो बहू ने बताया कि माँ जी की एक आदत थी, 24 घंटे में ऐसे राम का नाम नहीं लेती थी, कि जब भी स्नान करने बैठे ना, जैसे शरीर के, बड़ी उम्र वाली थी तो बहू भी नहलाती है, जैसे शरीर पर पानी पड़ता है उस वक्त वो राम 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 रोज बोलती थी स्नान करते समय। तो मुझे ख्याल में आ गया कि अगर इसको मैं नहला दूँ तो रोज की आदत के कारण से वो राम 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 बोलेंगे, और वही बात सही निकली। ऐसे हम भी आदत डालेंगे तो हरियन हरियन नौकार मतलब कुछ भी बोलना याद आएगा। ठीक है, तो अंतिम गाथा में कहते हैं, हाँ, और सिद्धि सुखोनी वांछा बिन वांछा बदी बुझ मन मातु दूर रहो तस्पास, मेरे मन में से सभी इच्छाएं दूर हो जाए, निरीह निष्प्रिय मैं हो जाऊं, केवल एक इच्छा एकमात्र बचे, किसकी? सिद्धि सुख माने मोक्ष। मोक्ष के सिवाय सारी इच्छाएं संसार की मेरी खत्म हो जाएं, एकदम मैं इच्छा रहित बन जाऊं। अथवा इच्छा करनी तो एक इच्छा करनी जैसी है कि इच्छा रहित होने की इच्छा, लास्ट में तो वो भी निकल जानी चाहिए। बिल्कुल इच्छा रहित होंगे तभी हमको आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन भी तभी होगा, और वितराग और केवल ज्ञान भी तभी हो सकेगा। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। इच्छा होती है, फिर विचार विकल्प चलते हैं, मैं कैसे मिले कहाँ मिले। इच्छा नहीं होती तो विकल्प नहीं होता है, मन निर्विकल्प जल्दी हो जाता है। निर्विकल्प स्थिति में आत्मा का अनुभव हो सकता है। मोक्ष के सिवाय दूसरी कोई इच्छा मेरे मन में न हो, ऐसा दंडनी मेरा कब आएगा। और अब लास्ट 25वीं कथा, विनय चतुर्विध संग तणो मन जो मने। चतुर्विध संग, साधु साधी सावकर सारिका, इसको चतुर्विध 4 प्रकार का संग कहते हैं। उसका विनय मुझे हमेशा मिले, संग के प्रति हमेशा आदर भाव रखना चाहिए। बड़े बड़े आचार्य भी संघ को तो 25वें तीर्थंकर की उपमा दी गई है, लेकिन वो संघ कैसा होना चाहिए? भगवान के आज्ञा का संपूर्ण पक्षपाती होना चाहिए। आचरण में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा तो, आदर तो 100% होना चाहिए। ऐसा जो 4 प्रकार का संघ है उसके प्रति मैं विनय करो, उसका आदर गुमान करो। और भक्ति मल जो मुनिवर श्री जिनदेव, जो मुनिवरों की भी भक्ति और जिनेश्वर भगवान की भी मुझे विशिष्ट भक्ति प्राप्त हो। सुंदर शासन मल जो श्री वितरागनो, जब तक मेरा मोक्ष न हो, प्रत्येक भाव में वितराग मनुष्य भाव और वितराग परमात्मा का शासन मुझे मिले। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 भाव तक ही मनुष्य, उपरापरी मनुष्य को मिल सकता है। उसमें अगर सम्यक दर्शन नहीं पाया, आत्मघटना नहीं की, तो फिर तो 3 वगैरह का भाव मिलता ही है।
તો સુંદર શાસન મળજો શ્રી રાગનું ભવ ભવ મળજો जिन चरणनी सेवजो प्रत्येक भव में दिनेश भगवान की चरणों की सेवा मने चरण माने पैर खाली नहीं, चरण का चारित्र भी होता है। भगवान के चारित्र मुझे मिले और उसका अच्छा पालन करके बस 2-4 भावों में मैं मुक्तिगामी हो जाऊं, ऐसे सुंदर मनोरथ रूप विजय जी महाराज ने इसमें हमें बताए हैं। तो हो सके जिनके पास किताब है तो अक्सर सप्ताह में कम से कम 1-8 बार तो इसका स्वाध्याय करना, हो सके तो रोज करने जैसा है। रोज टाइम नहीं मिले तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार तो इसका स्वाध्याय करने का जरूर लक्ष्य रखें। हो सकेगा तो वीरेंद्र भाई को कहेंगे जो रचना है तो आज में इसमें अगर आ जाए तो साथ में आप पढ़ भी सकें और सुन भी सकें। ठीक है, समय हो गया है। जिनाद को बुला गया हो हार्दिक इच्छामि दुक्कड़म और आनंद